Good morning students. So again I am back today with the continuation of lesson number 4, heat of class 7. Yesterday we have started the lesson. Yesterday we have read about what is heat, what is temperature, we have read about thermometer, and we have read about the two scales of thermometer, that is degree Celsius and degree Fahrenheit. We have read about these scales and I have told you the relation between them, so that if one value is given, such as value is given in degree Celsius, then you can convert it into degree Fahrenheit and vice versa. Yesterday I have also told you that basically we have to read about two types of thermometers in this chapter, that is clinical thermometer and laboratory thermometer. So first I am taking the clinical thermometer in detail. Clinical thermometer is a very common thermometer that can be seen in every houses. It is used to measure the temperature of the body. If somebody gets fever, then we use that clinical thermometer. You have seen in the doctor's clinic also. Doctor की clinic में भी clinical thermometer है, बहुत common है. Most of you have seen it. Now first let us study about clinical thermometer. Clinical thermometer, it is used to measure the body temperature. Second, made up of a glass tube containing bulb at one end filled with mercury. Now everybody have seen the clinical thermometer. This is a clinical thermometer. Like this it looks. This is the glass tube which I am talking about, made up of a glass tube containing bulb. This is a glass tube and this is a bulb which is filled with mercury. This silver portion is filled with mercury. Silver color is of mercury. Now why mercury is used? Mercury is used in both the thermometers, clinical thermometer as well as laboratory thermometer. But what is the reason for using mercury here? There are various reasons. First is, in most of the metals, mercury is the only metal which is liquid at room temperature. Mercury एक ऐसा metal है जो room temperature पे liquid state में रहता है. Most of the other metals are in the solid form. Second reason is it has very high coefficient of expansion. What does that mean? When we take the temperature, you must have seen that this mercury level rises in the glass tube. ये mercury का जो level है glass tube में rise होता है, एक पतला thread type structure, एक thin line expand होती है. So this is the reason why mercury is used. इसका expansion rate बहुत high है और ये high temperatures पे expand हो सकता है. That is why mercury is used. Other reason is mercury do not stick to the glass tube. Glass tube में mercury stick नहीं होता है, easily expand हो जाएगा और contract हो जाएगा. आपने देखा होगा when we jerk the thermometer like this when we use it again. जब हम दोबारा thermometer दूसरे patient पे use करते हैं, हम इसे jerk देते हैं so that mercury contracts down. जो level है mercury का वो फिर से नीचे आ जाए. Okay? Now coming to the second point, mercury level in the thermometer rises up in thread-like portion of thermometer. I have told you इस glass tube के अंदर एक और thread-like portion होता है जिसमें mercury का level expand करता है, which indicates the temperature of the body. जो body का temperature, जितना आपकी body का temperature है उतना mercury का level इस thread-like structure में expand करेगा. Third point is mercury level can be measured by reading the scale. Mercury का जो level है वो हम कैसे रीड कर सकते हैं? जितना उसमें स्केल जहाँ तक मर्क्यूरी का लेवल आया उतना बॉडी का टेम्परेचर होता है. Next, normal human body temperature is 37 degree Celsius. Now this is the point to be noted. जो हमारा normal human body temperature है वो 37 degree Celsius होता है. So if you see in the clinical thermometer, आपके जो घर में thermometers है आप उसमें देखेंगे क्लिनिकल थर्मामीटर का जो स्केल होता है इट रेंजेस फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 45 डिग्री सेल्सियस. 35 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस तक का स्केल होता है क्लिनिकल थर्मामीटर का, बिकॉज अवर बॉडी टेम्परेचर नाइदर फॉल्स बिलो 35 डिग्री सेल्सियस नाइदर इट राइजेस अबव द 45 डिग्री सेल्सियस. 35 डिग्री सेल्सियस के नीचे नहीं जाता हमारा बॉडी टेम्परेचर और 45 डिग्री सेल्सियस के अबव नहीं जाएगा. तो ये
रेंज होती है क्लिनिकल थर्मामीटर में स्केल की। नेक्स्ट इज इट हैज अ स्मॉल किंक नियर द बल्ब विच प्रिवेंट्स द मर्क्यूरी लेवल फ्रॉम फॉलिंग डाउन ऑन इट्स ओन। नाउ इफ यू हैव सीन इन दी थर्मामीटर, अगर आप थर्मामीटर में देखेंगे यहाँ बल्ब के पास आपको एक किंक दिखेगी। किंक क्या होती है? सपोज ये मर्क्यूरी यहाँ पर ये है, ये दिस इज द थर्मामीटर, यहाँ पर आप देखोगे इस टाइप का किंक होता है और यहाँ पे ऐसे मर्क्यूरी एक्सपैंड करती है। तो व्हाई दिस किंक इज प्रोवाइडेड? ये किंक क्यों प्रोवाइड होती है? किंक इज प्रोवाइडेड सो दैट द लेवल ऑफ द मर्क्यूरी डज नॉट फॉल ऑन इट्स ओन। मर्क्यूरी का जो लेवल है वो अपने आप से थर्मामीटर में नीचे नहीं आ जाए, यहाँ किंक तक आके मर्क्यूरी का लेवल रुक जाता है। दैट्स व्हाई दिस किंक इज प्रोवाइडेड। Now coming to precautions taken while reading clinical thermometer. While we use clinical thermometer, we should take some precautions. कुछ हमें precautions लेने चाहिए, कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जब हम clinical thermometer use करते हैं। What are those? First, it should be washed with antiseptic solution before and after using. थर्मामीटर यूज करने से पहले एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से वॉश करना चाहिए। यू मस्ट हैव सीन व्हेन यू हैव गॉन टू द डॉक्टर्स दैट दे पुट द थर्मामीटर इन अ बॉटल विच इज कंटेनिंग एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन इन इट। वाई? बिकॉज इट गोज इन द माउथ ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन। अलग अलग पर्सनस के माउथ में जाता है तो जर्म्स उसमें लग जाते हैं। तो फॉर वॉशिंग दैट वी शुड keep the thermometer, or we should wash the thermometer with antiseptic solution before and after every use. Second precaution we should consider is mercury level should be below 35 degrees Celsius before use. Now I have told that the scale of the clinical thermometer ranges from 35 degrees Celsius to 45 degrees Celsius. So we must ensure before using it that the level of the mercury is below 35 degrees Celsius, because if somebody has measured the temperature before, it must be there in the thermometer. जब किसी ने पहले थर्मामीटर से टेम्परेचर मेजर किया है तो उसका टेम्परेचर पहले से उसमें होगा, तो उसको पहले हमें इंश्योर करना चाहिए कि वो जो मर्क्यूरी का लेवल एक्सपैंड हुआ है वो पहले कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, उसके बाद वो न्यू टेम्परेचर मेजर करे। Third is handle it with care. It can break if it hits against hard object. Obvious है, ग्लास का बना हुआ है थर्मामीटर, so we should handle it with care because it can break down if it gets hit with the hard object. Next is read the level, keeping mercury level along the line of the side. Now you must have seen while observing the temperature in the thermometer that we cannot see the level of the mercury at each side. हम कहीं से भी mercury का level नहीं देख सकते हैं. We need to rotate the thermometer to certain level. जहाँ से हम देख रहे हैं हमारी जो line of sight है उसका हमें सेट करना पड़ता है, एक पॉइंट पे हमें वो मर्क्यूरी की जो लाइन है वो विजिबल होती है। तो वी मस्ट इंश्योर दैट कि वो जो मर्क्यूरी की लाइन है वो हमारी साइड से साइड के अलोंग हो। नेक्स्ट इज गिव अ जर्क स्लाइटली बिफोर यूजिंग इट। अब मैंने यहाँ सेकेंड पॉइंट में बताया था कि मर्क्यूरी लेवल जो है वो बिलो 35 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। तो बिलो 35 डिग्री सेल्सियस कैसे जाएगा वो? वी शुड गिव इट ए जर्क। आपने देखा होगा थर्मामीटर हम ऐसे जर्क स्लाइड जर्क करते हैं ताकि जो मर्क्यूरी का लेवल है वो नीचे कॉन्ट्रैक्ट हो जाए। सो दीज आर द प्रिकॉशंस वी शुड टेक while measuring before using the clinical thermometer. Now coming to the laboratory thermometer. Laboratory thermometer is used to measure the temperature of other objects rather than the human body. For human body we use clinical thermometers, but if we want to measure the temperature of other objects like other liquids, if I want to measure the temperature of the water, then I would use this laboratory thermometer. और भी किसी चीज़ का टेम्परेचर हमें मेजर करना है ह्यूमन बॉडी के अलावा, देन वी हैव टू यूज दिस लेबोरेटरी थर्मामीटर. सो लेट्स स्टडी अबाउट लेबोरेटरी थर्मामीटर. It is used to measure the temperature of other objects rather than the human body temperature.
scale ranges from -10 degree Celsius to 110 degree Celsius. Now the scale of the clinical thermometer was the 35 degree Celsius to 45 degree Celsius, but here the scale is very large, from -10 degree Celsius to 110 degree Celsius. Why it's a difference? Because क्लिनिकल थर्मामीटर में ये रेंज होता है क्योंकि हमारे ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस के बिलो नहीं जाता और 45 डिग्री सेल्सियस के अबव नहीं जाता, पर दिस थर्मामीटर वी आर यूजिंग फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स। तो उन ऑब्जेक्ट्स का अब हम किसी कोल्ड वाटर का, बिल्कुल चिल्ड वाटर का टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं तो दैट मस्ट बी इन माइनस। आइस का अगर हम मेजर करें तो माइनस में होगा, तो इसलिए -10 डिग्री सेल्सियस। और अगर हम बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर मेजर करें तो व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर? इट्स 100 डिग्री सेल्सियस। तो इतना वेरी कर रहा है टेम्परेचर इसका -10 से 110 डिग्री सेल्सियस तक का, क्योंकि जो हमारा टेम्परेचर जो मेजर करने का है हॉट और कोल्ड ऑब्जेक्ट्स का, दोनों का हम इससे मेजर कर सकते हैं। तो हॉट ऑब्जेक्ट्स के लिए टेम्परेचर हमारा बॉइलिंग वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस तक जाता है, और अगर हम बिल्कुल कोल्ड वाटर, चिल वाटर का टेम्परेचर मेजर करें तो वो माइनस में भी जा सकता है। तो इसलिए इसका जो रेंज है वो इतना वेरी करता है। नेक्स्ट इज कंसिस्ट ऑफ अ कॉलम ऑफ मर्क्यूरी एनक्लोज्ड इन अ ग्लास केसिंग। स्ट्रक्चर वैसे ही है लाइक क्लिनिकल थर्मामीटर, बस क्लिनिकल थर्मामीटर छोटा होता है, लेबोरेटरी थर्मामीटर थोड़ा बड़ा होता है। मर्क्यूरी का कॉलम होता है लेबोरेटरी थर्मामीटर में, जो कि ग्लास केसिंग के अंदर फिक्स्ड होता है। इट डज नॉट हैव अ किंक। अब किंक क्लिनिकल थर्मामीटर में आई हैव टोल्ड यू दैट देयर इज अ किंक नियर टू द बल्ब विच इज कंटेनिंग मर्क्यूरी। Now why there is a kink in clinical thermometer? So that the mercury level does not falls below on its own. मर्क्यूरी का जो लेवल है वो अपने आप नीचे ना आ जाए, इसलिए किंक होता है। और क्योंकि हमें जो टेम्परेचर है, हम टेम्परेचर कहाँ से लेते हैं? यूजुअली माउथ के अंदर थर्मामीटर रख के। तो हमें जब टेम्परेचर देखना होता है तो हमें मेजर निकाल कर थर्मामीटर फिर हम टेम्परेचर करते हैं, तो इसलिए किंक होता है ताकि वो मर्क्यूरी हमारे टेम्परेचर ऑब्जर्व करने से पहले ही नीचे मर्क्यूरी का लेवल नहीं चला जाए। पर जब हम ये लेबोरेटरी थर्मामीटर यूज़ कर रहे हैं तो लेबोरेटरी थर्मामीटर हमें अपराइट ऐसे स्ट्रेट रखना होता है। क्लिनिकल थर्मामीटर हम कैसे रखते हैं? हम अपने माउथ में ऐसे टिल्टेड पोजीशन में रखते हैं, ऐसे इस पोजीशन में। बट लेबोरेटरी थर्मामीटर हम वाटर का, अगर किसी भी चीज़ का टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं तो हम किसी कंटेनर में लेके करेंगे, जैसे हमने वाटर का किया। देन वाटर मस्ट बी केप्ट इन सम वेसल एंड वी हैव टू मेजर द टेम्परेचर लाइक दिस। इस तरीके से हम मेजर करेंगे। और इसमें किंक इसलिए नहीं होता क्योंकि वी ऑब्जर्व द टेम्परेचर वाइल द थर्मामीटर इज केप्ट इनसाइड द सब्सटेंस ओनली। वाटर का टेम्परेचर मेजर करें तो वाटर में रखे ही हम, थर्मामीटर इतना लॉन्ग होता है, हम रखे ही उसका टेम्परेचर मेजर करते हैं। क्योंकि जैसे ही, अब किंक नहीं है लेबोरेटरी थर्मामीटर में, तो एज सुन एज वी टेक आउट द थर्मामीटर द लेवल ऑफ द मर्क्यूरी विल गो डाउन। तो इसलिए हमें जो थर्मामीटर, लेबोरेटरी थर्मामीटर में टेम्परेचर में ऑब्जर्व करना है वो ऑब्जेक्ट के अंदर, सब्सटेंस के अंदर रहते ही करना है, क्योंकि किंक नहीं होता इसमें। किंक नहीं होने की वजह से मर्क्यूरी का लेवल हम निकालते ही वो स्लाइटेस्ट चेंज भी फील करता है, क्योंकि वो जिस ऑब्जेक्ट में, हॉट ऑब्जेक्ट है तो उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, और जैसे ही हम निकालेंगे तो टेम्परेचर कम हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ड्रॉप हो जाएगा। तो हम सब्सटेंस का, जो भी हमारा वाटर है, ऑब्जेक्ट है, उसका टेम्परेचर मेजर नहीं कर पाएंगे हम निकालने पर। तो इसलिए अपराइट पोजीशन में ही हमें उसका टेम्परेचर मेजर करना होता है। लास्ट पॉइंट इज दिस ओनली, मस्ट बी केप्ट अपराइट एंड नॉट टिल्टेड। अपराइट रखना चाहिए हमें, उसे टिल्टेड पोजीशन में नहीं रखना चाहिए। So this was about the two types of thermometers, clinical thermometer and laboratory thermometer. Tomorrow we will read about the transfer of heat. Heat कैसे transfer होती है and what are the various processes for that. So that's all for today. Let's meet tomorrow. Goodbye.